भारत, जहां हर गली में एक इन्वेस्टर है, हर मोहल्ले में एक मार्केट और हर दुकान में एक एंटरप्रेन्योर। हमें इंडिया का सबसे पहला ऐसा शो जहां सुपर फाउंडर्स को मिलेगी टोटल 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। आज भारत के सुपर फाउंडर में I'm building from Bharat to the world. आ रहा है एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी आस्क ने भारत के टॉप टाइकून्स के होश उड़ा दिए। Zero equity. ये जोड़ी लास्ट माइल डिलीवरी सेक्टर को रीडिफाइन कर रही है। एक पर्सनल ट्रेजेडी ने इस सुपर फाउंडर को एक ऐसा सोल्यूशन बिल्ड करने पर मजबूर किया जो फ्यूचर में ऐसे हादसों को रिपीट होने से रोक सकता है। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टर्स भी हैवी वेट होने चाहिए ना। सबसे पहले क्रिएटर ऑफ थायरोकेयर डॉक्टर वेलुमणि, फाउंडर ऑफ ऑल इन कैपिटल आदित्य सिंह, फाउंडर एंड सीईओ नजारा टेक्नोलॉजीज मिस्टर नितिश मित्र सेन, अनिक अर्थ वेंचर्स की सीआईओ डॉक्टर आरती गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ एलवीएक्स शांति मोहन। 100 करोड़ के इस इन्वेस्टमेंट में टाइकून्स का साथ देगा मार्केट बाय रेकर क्लब, जहां मार्केट में बैठे हैं बेस्ट ऑफ द HNI एंड सीड इन्वेस्टर्स। अब मिलते हैं भारत के सुपर फाउंडर से। Wow. Can you take your phone? I don't Sir, have you a can phone. sit like that one. You can just sit. Sir. How do you know that's my phone? It could be my wife's phone. I'll just show you a demo. Demo means you're not a magician or something. No, it's not. you won't. It's not like that. You can just open your phone, sir. You'll get it. So you downloaded also? Huh? No, it's not downloaded. Then? It works on NFC. ये पैसा नहीं खींचेगा ना? Only English. Only हिंदी। Where are you from, yeah? Tamil Nadu, Chennai. Good luck. Thank you. ग्यारह साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे सर? मैं हूँ एक मिनट। भारत के सुपर फाउंडर है। एक I'm building from Bharat to the world. सर देखा, पहली बार कोई आपकी भी बात नहीं सुन रहा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरती, आप क्या कर रही थी 11 साल की उम्र में? मैं दूध नहीं पीने की जिद कर रही थी। तो बहुत ही सैड फील हो रहा है आज। सुनील सर, आप मुझे भी पूछ लीजिए, मेरा आंसर रेडी है। सर आप तो 16 में पैसे बनाना चालू किए थे, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप 11 साल के एज में फुल टाइम गेमिंग चालू था आपका। गेमिंग कंपनी चालू करने का ख्वाब प्लान रख था? रहा था। क्या बात कर रहे हो? Dear tycoons, it already seems that you have my contact info right now. Pretty fast, right? Yeah. मेरा नाम अद्वैत, founder of Zozo Connect. And yes, I know what you're thinking right now. 11 साल का बच्चा, startup का founder. But dear tycoons, Gen Alpha kids are built for business and born for disruption. We represent the future of Bharat. My mom and dad who are sitting right there are also entrepreneurs. I used to go to startup events with them and I noticed something. Everyone is sharing their contacts with visiting cards everywhere. The cards were at floors, at tables, at cafeterias, even in trash bins. I felt bad for Mother Nature. And I thought, is this 2025 or 1995? That doesn't have technology. Zozo makes NFC cards. NFC matlab near field communication cards. This is no paper, no printing and no waste. Just one tap, instant connection. Our card is so eco-friendly and very cool. Even Sunil Shetty sir was surprised, right? Yeah. Everyone gets surprised and gets it cool and is approved by the future generation. My vision is to make a Zozo universe, a complete Zozo ecosystem
a smart ID that lets you store and share contacts, make payments, enter events, and becomes your digitally verified smart identity. So are you all ready to partner up with me and invest in the future of smart networking and the future of Bharat? My ask is 2 crores at a 25 crore valuation. First of all, for Thank you, sir. your energy और कैसे यार छोटा पैकेट बड़ा धमाका. Yes, sir. And before we go to any questions, I have a gift for you. One small thing. Okay, thank you. Oh, very nice है. एक मेरा एडवाइस है, Thanks. हिंदी सीख लो. Definitely. Coming from Tamil Nadu, lack of Hindi should not limit your world. बट सर उसकी ड्रीम्स ग्लोबल है, वो तो जापानीज और कोरियन भी सीखेगा. So Atvik, I'm very happy to see you here. I want to share my story with you. My father bought me a gaming computer games device when I was 5 years old. And I started making games when I was 7 years old. Wow, sir. Started my company when I was 15, 16 years old. And it eventually, after 25 years of work, went on to be India's first listed gaming company. So starting young is a big advantage. Yes. If anybody had any doubt in India's future, today they will have, seeing you, they will have no doubt. Yeah, you are Bharat's future. एक बात बताइए, आप अभी छोटे हैं, आप स्कूल जाते हैं? Yes, I'm going to school. How do you maintain school and work-life balance? So one thing I learned very young is that how to manage my time, how to like keep a schedule and follow that. And one more key thing is that I'm a topper in school, so I study very fast and learn very fast. So I do it in 60 minutes, work and then play, do anything. I'll be a normal child. We are all still trying to Figure out work-life balance. we are still trying to learn. Are you selling? Do you have any revenue numbers? Yes, sir. We have sold to 500 customers till date. In your product, one thing that is very important is this a novelty product or this is a daily use habit forming product? People who are buying this, are they actually using it every day? Yes, sir. One thing is we are not focusing on the entire card sales because that is transactional. The card they'll pay and that's it. They won't get too many features. They'll get the essential ones. But we have a subscription model entirely. How much do you charge for subscription? So it's about 99 to 599 rupees. The 599 and all are Pro and Pro Plus, and the before 99 are the Pros. I have a son who is 11 years old. So I'm very, very impressed at what you are doing at the age at what you are doing. But considering this is a business show, there are startups, international startups also, जो हर जगह मिलती हैं. Unicode हो गई, Hi Hello, Blink, Yes, Credo. sir. They only stay at the card. We focus on after the tap where the real connection is there. So people come for the connection, not the fancy or that. You are saying the journey starts once you get the contact. But that CRM integration, Salesforce integration, many startups are doing. Everyone does CRM integration, but what they just do that. What we do is we separate them into hot and cold leads. AI agent will focus on the hot leads and will automatically do all the follow-ups, all the emails, whatever you want. It searches who they are they relevant to you, and how should you follow up, and when should I follow up. It tells all of these, and nobody is having this. A lot of people are very apprehensive when you want to tap something on their card. You know, like, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से भी टैप हो सकता है, पैसे निकल भी सकते हैं, इतना फ्रॉड का जमाना है. Did you understand the problem? Yes, yes. Okay. After a conversation only the contact is getting exchanged, whether it is paper card, digital card, whatever it is. How do you ensure the security of the data? Because today the biggest breach lies with the data security. We are from the background of cloud, so we know how to secure cyber security aspect, and in terms of to ensuring the highest international standards, we are doing SOC 2 certification for the platform. In case if the card has been lost, you can have the option in the app to block it immediately.
लास्ट एक साल में आपने कितना रेवेन्यू किया? 3 lakhs is what revenue has been done, but last 2 weeks before only we have incorporated the company and we are kickstarting this. और ये बताओ कि आपकी कंपनी आपको क्यों लगता है कि 25 करोड़ की है? Zozo Connect, like we are planning to generate revenue $1 million in next 1 year time frame. तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि एक साल में 3 लाख किया और अगले साल आप 1 मिलियन जो 8 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए There इतना are करेंगे? GTM strategies we have. So with these GTM strategies, like we will be having 1 million users in 1 year time frame. So when that happens, so 1 million, even if it's 1 lakh people, they are paying a subscription. It comes a lot when it's like it's in a so compound. confident. What is the cost of the card? The black card is about 999, and the silver and gold card is each card that is 1,999. What is the cost of the card? Not I'm telling selling price. Manufacturing cost including printing to 35, and from there like we are. I think you have really gone wrong. What goes wrong with entrepreneurs is 3 things: product, pricing, presentation. Your product is good. Your presentation is wonderful. Your pricing is wrong. You are supposed to work without a margin. At least for until you get a million card. Yes, sir, that is what we are planning. Then why are you charging more? For now, sir, the GTM we are actually doing some. For now, we are just testing what is happening. That is what every month there's 25,000 companies are incorporating. For the, let's say the directors, we will give them the card, but they will only pay the courier fees. That's it. They don't need to pay 999 or that and all. So with 99 rupees, like we are shipping the card to the directors. That 99 includes the manufacturing cost and then the shipment cost. So the customer acquisition cost becomes very less. So when they become a power user, out of that 1 million, like what we have planned, 7 to 10% will be on the freemium model. There will be a paid users down the line. So by the end of 12th or 13th month, 100K MRR will be our runways. I'm not too sure if that is the best GTM, which is the new companies getting incorporated, because the directors may not actually be the owners, number one. Number two is that anything that you just blindly are sending, they will not value it. I think the strategy you have to, I can be wrong, put a wait list, make it desirable. Make this product, if you're doing a soft launch, this, that, like, a basic card can be given to anybody, but a premium card should go on a wait list, create some kind of a FOMO. Okay, execute that strategy. I would like to see how you do. Don't get discouraged. Try, experiment. The things which are valuable are the things which you don't get for free. I will give you 3 options. Tell me who is your target customer. Option A, he doesn't have a visiting card. He is desperately waiting for it. B, he got visiting card. He does not know whom to give. He desperately waiting to give. Third one, like Sunil sir, has enough visiting cards, does not want to give to anyone. Whom are you targeting? Option B. Right, I think that's intelligent. Overall, I think, great presentation. I personally feel, there could be habit-changing challenges that come in, something which was highlighted, something for you to consider on, how the use case will be presented when you are, getting in subscribers and trying to change the habit as well. Yes, sir. One thing is that it is not just about you sharing your contact. You can share an entire business info. You can keep FAQs. You can keep your video, a short thing about it. It's a software. You can do all the things. It's not hardware that you need to do again. Visiting cards is hardware. You need to change the color every time. If you're going up a position, you need to change. 500 cards, 500 cards, 500 cards. You have to buy again and again and again. But this card is not like that. One card is enough. What is your big dream? To make Zozo as a complete, much more ecosystem and make it as a unicorn. चलिए मार्केट स्कोर्स दीजिए. चलिए स्कोर्स देखते हैं. Wow. Team को 3, market value 3, 4 and 4. Let's go for the offer. I actually don't have one offer for you. I have 3 offers for you.
So my first offer is from my end, I will give you a 11 lakhs grant to encourage you. Yes, sir. My second offer to you is a lifetime of mentorship. I think for young founders, mentorship is very, very important, much more important than even capital. And the last offer I have is, because I am from the technology business, I run a gaming company. हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं AI पे, new technologies पे. Lot of it will be relevant for you. So come to our offices in Bombay, in Mumbai. Yes, sir. Spend time. I will introduce you to my team also. And I'm sure you will learn from them and they will learn from you. Yes. So this is my offer. Yes, sir. Aditya? ओवरऑल इंडिया में सब्सक्रिप्शन बिजनेसेस इतने स्केल नहीं करे हैं. हजार लाखों लोगों को हर मंथली उनसे चार्ज करना पैसे, ड्रॉप ऑफ बहुत होता है, बहुत चर्न होता है. एंड तीसरा, इवन दो बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, आई फील आपका तीसरा चौथा स्टार्टअप तो पक्का यूनिकॉर्न बनेगा. मेरे तरफ से नो ऑफर. आरती जी? आज आप जो बना रहे हो, जैसे कि आदित्य ने भी कहा, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है. यू विल पिवट दिस प्रोडक्ट. Yes, ma'am. And whenever you reach the final product, right, or whenever you become that and you raise your first round, you know, we will participate in this. Yes, Yeah. sir. Today, it is a no partnership. It's again my open mentorship to you and to your mother also, because I know what it is to raise an entrepreneurial daughter. Ankur? The offer is that I'm happy to work with you. I've also invested in a startup called Samaro. They're already doing what you're doing. So instead of recreating the world, you can integrate. But the day you get to 50 lakhs of revenue, 25 lakh rupees of revenue also doesn't matter. I want to see that GTM. I will be willing to invest at that stage. And when I invest, it will come from my son so that he can also learn something from Yes, you. sir. Thank you. Oh, sir. But no offer. Doctor? If you have come here for funding, that's unfair. If you have come here to get confidence, visibility, motivation, you have achieved that. So first, that's done. True. Yes, sir. True. So I would say first create, if possible, 1 million buyers. Then you come for pitching. Then you will get any value which you ask. Until that time, you will not get value which you ask. Or your company is too young for me to invest. But I'm willing to invest on you. Listen, all of them are from North. They can't meet them often for mentorship. I am from Coimbatore. So commit to me. I commit to you. We make it large. Sure, sir. Sir, he's digital kid. Distance doesn't matter. Geography doesn't play a role nowadays. प्यार तो ऑनलाइन में नहीं होता है. सभी से कुछ ना कुछ सीखेंगे. बिल्कुल. So I think that is important. Market? हम इतने इम्प्रेस्ड हैं इससे कि हमें लगता है कि जो हम इतना बड़ा शो बना रहे हैं इंडिया का, भारत का सुपर फाउंडर्स, हर भारत के सुपर फाउंडर को एक ऐसा कार्ड मिलना चाहिए जो उनको एफिशिएंट करे, उनको न्यू एज में लाए. तो हम क्रिएटर्स ऑफ द शो से बात करेंगे कि हम हर फाउंडर को जो इस शो में आ रहा है उसको एक ब्रांडेड कार्ड मिले, दैट बिकम्स, एंड वो मार्केट करे और आपको उससे भी ऑर्डर मिलेंगे और हेल्प मिलेगी. और रेकर क्लब में हमारे पास खुद के 1000 कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं. हम उनसे भी देखते हैं कि हम उनको अगर ऑफर करें मे बी गिफ्टिंग, विल फिगर समथिंग आउट कुछ करके जिससे आपको और बूस्ट मिलेगा. तो आई थिंक दैट इज व्हाट मार्केट हैज टू ऑफर टुडे. Make sure that you take their numbers and call them up for anything that you need. Yes, sir. One day you should come and tell in a stage, I went for a pitching at this year. No one gave me an offer. Today, everyone is willing to give me millions of dollars. Yes, sir. Mentorship तो आपको है ही है. उसके अलावा there's a gift coming for you, something special. आपके इस entrepreneurial journey में आपको और आगे लेके जाने के लिए आपके साथ है OnePlus Pack 3, which is rewriting the rules for Android tablets. This is भारत के super founders supporting young entrepreneurs like you. Yes, sir. Thank you. Congratulations. Thanks a lot, sir. Love you and Thanks, sir. आगे आ रहे हैं वो सुपर फाउंडर्स जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनोवेशन का नया बेंचमार्क सेट कर रहा है, और एक ऐसा स्टार्टअप जिसने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम क्रिएट किया है.
और आ रहे हैं पेरेंटिंग के गेस वर्क को खत्म करके पेरेंट्स के हाथ में सही डायरेक्शन देने वाले सुपर फाउंडर्स। चलिए बुलाते हैं भारत के अगले सुपर फाउंडर को। वेलकम 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 गाइस। हेलो टाइकून्स, मेरा नाम नजीब है मेरा नाम अनु है और हम हैं फाउंडर्स ऑफ अल्बॉन कॉस्मेटिक्स। टाइकून्स, भारत के कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक सुपर फास्ट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब हमने एक डीप ऑब्जर्व किया तो एक चीज़ मेजर मिसिंग थी और वो थी रियल इनोवेशन। इसी सोच के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया अल्बॉन का फ्लॉलेस फ्यूजन 4-in-1 पैलेट, जो एक ड्यूअल शेड फाउंडेशन कम कंसीलर, कॉन्टर और ब्लशर भी है। इसी रेंज में हमने और प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे हमारे 2-in-1 एंड 3-in-1 पैलेट। टाइकून्स, अब हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारा हीरो प्रोडक्ट, जो है एक लिप सीलेंट। सो टाइकून्स, आपकी फेवरेट लिपस्टिक अप्लाई कीजिए, उसके ऊपर आपको सिर्फ हमारा सीलेंट डैप करना है एंड योर सील फॉर द एंटायर डे। इनोवेशन के साथ जब हम कंफर्ट, प्योरिटी और लग्जरी जुड़ जाता है, तब बनता है एक ट्रूली प्रीमियम प्रोडक्ट। इसमें है और रियल कोकोआ बीन्स के रिच प्रीमियम फ्रेग्रेंस। और अब क्यों ना हम लग्जरी को सिर्फ बात ना करें और आपको एक्सपीरियंस दिखाइए। Hi guys, it's me Elia Ram, and today I'm super excited to try out this new makeup brand that's come in the market, and it's called Albon. So let's start. So I'll be trying out Albon's most special product, which is the 4-in-1 palette. It's really like creamy. Can you guys see how flawless my skin is looking now? So this is my quick glam look using Albon's product that just took a few minutes. And if you want to achieve this same look, then grab yours now. अल्बॉन को हम एक इनोवेशन, लग्जरी और एक्सेप्शनल वर्ल्ड सीजनल ब्रांड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इस विजन को स्केल करने के लिए हमारी मांग है 1.5 CR इन एक्सचेंज ऑफ zero equity. So Tycoons, do you want to partner with us? So हम लोग क्लियर है कि हम लोग डेट पे नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज वो हमारे लिए हराम है। इंटरेस्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो हमारे फिक्स डिपॉजिट से भी क्यों ना हो, वो 1 रुपीज हो या लाख रुपए हो, वो हमें दान में ही देना पड़ेगा। इवन बैंक में रखा हुआ पैसे से जो भी आता है वो भी हमने यूज करते हैं, तो हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते और तो ना ही इक्विटी शेयर कर और ना ही इक्विटी, बिकॉज हम अभी एक ग्रोइंग स्टेज में, हम जस्ट लॉन्च हुए। सो अब हमें नहीं लगता कि हमारा वैल्यूएशन भी मैच करेगा जब हम 1.5 CR में एक इक्विटी की बात भी करें। वंस वी रीच एक 10 CR वगैरह, एंड देन डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर द इक्विटी, बट we are offering you 2.5% of royalty on the sale value. Sure. Forever. Perpetuity. Yeah. Famous saying है, beauty does not last forever. Yes. Beauty हमेशा तक नहीं रहती, but आपकी royalty will have to last forever. So इसी में ऐसे है कि 1.5 करोड़ के अगेंस्ट में वी आर एक्सपेक्टिंग कैप ऑफ रिटर्न 3x. सो हम लोग देंगे आपको 4.5 करोड़ in a period of time whichever is mutually agreed. Once your return has been done, we will come down to a fixed royalty of 0.5%. Okay. For next 5 years. इसमें सेल्स बताओ कितनी है, फिर रॉयल्टी समझ आएगा ना कितने प्रोडक्ट बेच रहे हो। फर्स्ट सेल जो हुई है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हुई थी। सो तब से लेके अभी तक हमारा सेल जो हुआ है नियरली 11 लाख रुपीस। सो जो हमारी मेजर सेल्स है वो हमारी हुई है B2B से, और जो रेस्ट 10% है वो हमारी हुई है B2C से। B2B में क्या करते हो? हमने हमारा प्रोडक्ट कतर में भी लॉन्च किया है। हमें हमारा ब्रांड ग्लोबली एक्सपांड करना है, बिकॉज हमारा एंटायर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। नहीं तो कतर में क्या कराया आपने? व्हाइट लेबल कराया? वी हैव गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशनशिप। डिस्ट्रीब्यूशनशिप इन सम अदर ब्रांड। पैकेजिंग रहेगी, पैकेजिंग एज इट इज रहेगी अल्बॉन के नाम पे, बट जो बिलिंग वो सब होगा वो उनके नाम पे होगा। तो फिर उसको B2C कहते हैं। आपकी वेबसाइट से बेच रहे हो? हाँ, कहाँ से बेच रहे हो? 99% हमारी वेबसाइट से है। अभी हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे भी अवेलेबल है। दिस ईयर एंडिंग के पहले ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। बट ये मार्केट काफी क्राउडेड है। राइट।
अच्छे प्रोडक्ट के साथ, इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ भी आपका बिजनेस कितना और क्यों ग्लो करेगा? एक फीमेल अगर जाती है, खरीदती है, कॉन्टोर लेना पड़ता है, फाउंडेशन लेना पड़ता है, उनको कंसीलर लेना पड़ता है और ब्लशर लेना पड़ता है। मिनिमम तो 6000 आपका कहीं नहीं गया। ये तो मैं फिर भी एक नॉर्मल रेंज की ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अब आपको यही चीज चारों हमारे पैलेट में मिल जाएगी, वो भी इन अ मिनिमम बजट। हमने बजट माइनस करके लग्जरी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन कोई भी उठाओगे तो आप स्मेल करोगे तो देयर विल बी अ केमिकल स्मेल। हमारा पैलेट ओपन करो और हमारे फाउंडेशन आप जरा सा स्मेल ले लो, आपको रियल कोकोआ बीन्स की फ्रेग्रेंस जरूर आएगी। आपका कोई बैकग्राउंड है क्या इस सेक्टर में, कॉस्मेटिक्स में, या फिर? नहीं, बैकग्राउंड तो नहीं था, बस वो एनालाइज किया था। तो ये फॉर्मुलेशन कैसे बन रहा है? अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो ये बनता कहाँ है? दिल्ली में वी हैव अ मैन्युफैक्चरर। और ये फॉर्मुलेशन आप उनसे बनाते हैं? फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट है जो ये बनाते हैं? दूसरा मेरा सवाल है, ये जो पैलेट है, जो आपका जो सबसे बड़ा इनोवेशन है कि एक पैलेट में आपको 4 चीजें मिल रही है, ये कस्टमाइजेबल है? नहीं, सेट पैलेट है, बट इसमें कैसा है कि आप फेयर स्किन टोन के लिए ब्लशर अलग कलर के हैं एंड जो बेस्ट स्किन टोन्स है उनके अलग शेड्स है। सो हमने उनके नेचुरल फ्लैश जो हमारी चीक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ब्लशर में चेंजेस लाया है। पर ऐसे हो सकता है ना कि मेरा करेक्टर शेड अलग हो और मेरा फाउंडेशन शेड अलग हो, तो आप वो कैसे, मतलब आप वो दोनों को मर्ज करके अपना शेड बना सकते हो। मार्केटिंग से ट्रायल मिलता है, पर लॉयल्टी से ही ब्रांड बनता है। जी जरूर। तो आप लॉयल्टी कैसे लाएंगे ब्रांड बनाने के लिए? हमारा प्रोडक्ट समझने के लिए मेन चीज जो चाहिए था वो है अवेयरनेस। फर्स्ट थिंग कि पहले ब्रांड समझो कि हमने क्या इनोवेशन लाया। जब ये समझ जाते हैं देन द रिएक्शन इज लाइक वाओ, ये चीज तो हमें चाहिए थी, हमें लिप सीलेंट चाहिए थी, हम कॉफी पिए तो लिपस्टिक का मार्क, हम खाना खाए तो गया, वापस से हमें रीअप्लाई करो, टचअप करो। अब ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं, आपको 24 आवर्स का हम लिप सीलेंट करके दे रहे हैं, और ये मेड इन इंडिया, इंडिया का फर्स्ट लिप सीलेंट भी है। विमेन के लिए एक ब्रांड की एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्ट जो है वो रेप्लिकेबल है, जैसा कि अभी आपने ही बोला। सिर्फ मार्केटिंग को ये मत बोलिएगा कि सिर्फ मार्केटिंग करेंगे तो ब्रांड लॉयल्टी बन जाएगा। नहीं। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस उसके बियॉन्ड टू बिल्ड दैट ब्रांड लॉयल्टी? आप हमारे कितने प्रोडक्ट कॉपी कर लोगे? 1, 2, 3, 4 हम और भी बनाएंगे, बट ये सोच आ रही है अल्बॉन जो एक भारत का कंपनी है। आप इंटरनेशनल कॉपी कर लो कि सबसे पहले तो भारत की कंपनी ने ही बनाया था जो अल्बॉन थी। इसके आगे भी हमारे जो अपस्केल ऑलरेडी चल रहे वो आज तक नहीं आए। अब ये चीजें ना हमारे मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते ना कुछ, हम दोनों ले आते। आइडिया ऐसी होती है कि समझ नहीं आता क्या ये कैसे बनाए, बट हमारा टारगेट यही होता है, यही बनाना है। एक इसकी प्राइस पॉइंट बता दीजिए। या इट्स 1999 फाउंडेशन वाला, और लिप सीलेंट? लिप सीलेंट है 699। आपने जरूर 4 चीजें एक पैलेट में करी है, पर आपने क्वांटिटी भी तो 1/4 कर दी है। नहीं, इट इज 18 ग्राम। मूस बेस्ड फाउंडेशन में क्वांटिटी ब्लेंडिंग के लिए कम लगती है। जो 2000 रुपए का एक फाउंडेशन आता है वो कम से कम इससे 2.5 से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ग्राम आप मेजरली 11 से 12 ग्राम के ऊपर नहीं होता है। और आपका कितना है इसमें? 18 ग्राम है एक। The entire will go for different 18 grams divided into 4. Yes. क्वेश्चंस आरती पूछ रही है वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, बट दैट हैज नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री। राइट। हमने कॉन्शियस केमिस्ट में, सीक्रेट एल्केमिस्ट में इन्वेस्ट भी करा है, कमाया भी है। नाउ आप भी खुद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने जो भी प्रोडक्ट में डेवलपमेंट्स करी हैं वो फॉर्मूला आज किसी के पास बैठा हुआ है। जी। तो डिफेंसिबिलिटी क्या है? तो कोई भी बना सकता है फिर? कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। हमारा अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो ना उसी के साथ होता है जिसने साइन करा है, उसके एम्प्लॉय के साथ नहीं होगा, उसके R&D वाले के साथ नहीं होगा। तो डिफेंसिबिलिटी कहाँ से आएगी? वैसे तो आप मेरे लिए कोई भी ब्रांड लेके आओ, मुझे 1 महीना दे दो, मैं सेम टू सेम उसका, आप बताओ मैं तो कवर भी ले लो, मैं बता दूंगा इसका फॉर्मुलेशन। इसलिए बहुत से लोग मेहनत भी नहीं करते, चाइना से लाते हैं, बेचते हैं स्टैंप लगा के। तो वो डिफेंसिबिलिटी आप खुद कह रहे हो नहीं है। इक्विटी के लिए तो आए नहीं हो, रॉयल्टी के लिए। रॉयल्टी कितना? 2.5% बोला आपने? 2.5%। अब टू 2.5% अगर 4.5 करोड़, ओनली 3x कैप। ओके, तो 2.5% पे अगर आप अभी करो तो मेरे को तो महीने के 3000 रुपए मिलेंगे। तो जैसे आप चल रहे हो जिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे, तो मुझे तो 100 साल लग जाएंगे पैसे निकालने में इन द रॉयल्टी। अभी अगर देखो इस महीने अगर मैं आपको आज दूं तो अगले महीने आप मुझे दोगे 3000 रुपये। आप अगर 3-4 लाख का, उसका 2.5%,
इस नहीं, 5,000 हमने लास्ट 45 डेज में 11 लाख टच कर लिया है. सो डेफिनेटली ईयर क्लोजिंग तक हम लोग उससे ज्यादा ही जाएंगे. 1.5 करोड़ रिकवर करने में भी आपको कितने साल लगेंगे? आप अपनी कैलकुलेशन करके बताइए. 2.5% पे हमारा अजम्पशन है 3 से मैक्स 4 साल में रिटर्न देने के लिए. 4.5 देंगे आप 3 साल में. जो आपकी 2.5% growth- करते हुए. यस. मतलब आप 4 साल में 80-100 करोड़ की तरफ जा रहे हो. यस. अगर रिटर्न नहीं कर पाए तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप डेट नहीं रिटर्न कर पाते तो एक इक्विटी किकर आ जाता है कि इक्विटी मिल जाती है एक लार्ज प्रोपोर्शन, पर वो भी नहीं कर सकते आप. सो इन दैट केस वी कैन कम इनटू इक्विटी अगर हमने वो 4 साल में नहीं रीपे कर पाया. 4 साल में हम नहीं दे पाए तो आपकी सेल वैसे ही नहीं बढ़ रही, तो इक्विटी लेके क्या करेंगे हम? वो इक्विटी उस वक्त. सो फिर हमारा ब्रांड का मतलब ही नहीं है अगर हमने सेल्स नहीं कर पाई तो. एग्जैक्टली. अगर सेल का कॉन्फिडेंस आ रहा होता तो रॉयल्टी भी करते, इक्विटी भी करते, एक ही बात है. मार्केट का स्कोर प्लीज. Three, 3, 2. चलिए, what's the offer on the table? टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए नॉइज थोड़ा ज़्यादा है, सिग्नल कम है, इसलिए मैं आज आपसे पार्टनर नहीं कर पाऊँगा. कंग्रेचुलेशंस कि आप आपके पैशन को आपने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया. आज के लिए कोई ऑफर नहीं है. अभी आपका प्रोडक्ट मुझे इतना समझ नहीं आया है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, बट टुडे नो ऑफर फ्रॉम मी. थैंक यू. अभी तक तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा कि ये प्रोडक्ट रॉयल्टी यूज करके आप जो भी आपने प्रॉमिस करा है वो उतने टाइम फ्रेम में दे पाओगे. तो मेरे तरफ से कोई ऑफर नहीं है, मैं पार्टनरशिप नहीं कर पाऊंगा. थैंक यू. ऐसा है, मेरे उम्र में ये ज्यादा समझ में नहीं आता है. सर हमारी उम्र में भी नहीं आता. आपको और भी साइज बढ़ाना होगा, तभी हमें उम्मीद लगेगा. इंटरेस्ट रिटर्न तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कभी मिलेगा जैसे इन्होंने बताया वो बहुत दूर की है. फिलहाल मेरा कुछ ऑफर नहीं है. मार्केट से कोई ऑफर? रॉयल्टी वाले मॉडल में करते हैं मार्केट में लोग, लेकिन अभी थोड़ा अर्ली है तो मार्केट से अभी नो ऑफर. नो प्रॉब्लम. सो ऑल द बेस्ट और श्योर. गुड लक. आगे आ रहा है एक ऐसा स्टार्टअप जिसने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम क्रिएट किया है. और आ रहे हैं वो सुपर फाउंडर्स जो आपके पेरेंटहुड को शेप करने में मदद करेंगे. मेरे डैडी सुपर हीरो है. सुपर हीरो वो होता है जिसके पास सुपर पावर्स होती है. पता है सुपर पावर किससे मिलती है? उनकी स्कूटर से, जो उनकी हर टफ काम को इजी बना देती है. मुझे स्कूटर पर बिठा के टाइम से स्कूल पहुंचाते हैं. धूप हो या तेज बारिश, मेरे पापा हर डिलीवरी के साथ मेरी एक ड्रीम पूरी करते हैं. वो इतना बिजी रहते हैं, फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं. मेरे डैडी सुपर हीरो इसके लिए है क्योंकि मेरे पापा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं. आई लव माई सुपर हीरो. नमस्ते टाइकून्स. आज हमने एक बेटी अपने पापा को सुपर हीरो कहते हुए देखा है. इस सुपर हीरो का खर्चा जब ज्यादा होता है उसका असर पूरा परिवार के ऊपर पड़ता है. आज के दिन दूध से लेके दवाई तक सब हमारे घर के पास आता है. हमारे घर के पास डिलीवरी करने के लिए करोड़ों पेट्रोल टू व्हीलर्स हमारे रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं. पर इस पेट्रोल टू व्हीलर को चलाने के लिए तकरीबन 12,000 से लेके 15,000 तक खर्चा होता है.
ये खर्चा एक डिलीवरी पार्टनर के कमाई में बहुत बड़ा डेंट क्रिएट करता है। करोड़ों लोग एक सोल्यूशन के लिए देख रहे हैं जहाँ पे उनका खर्चा कम और कमाई ज्यादा। इसी के लिए है हाला मोबिलिटी एक ईवी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं श्रीकांत को-फाउंडर एंड सीईओ हूँ। मेरे साथ स्नेहित इज अ को-फाउंडर एंड सीईओ। हाला एक ईवी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों डिलीवरी पार्टनर को एक्सेसिबिलिटी देता है। आज तक हमने 25,000 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस देके उसका कमाई 30% ज्यादा किया है। आज हमारे सर्विसेज 9 सिटीज में अवेलेबल है। 9,000 से ज्यादा गाड़ियां हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और इस साल हम 92 करोड़ के रेवेन्यू बना के 6% पैट पे हम टॉप 5 प्लेयर्स के लीग में जुड़ने वाले हैं। हमारे लास्ट माइल डिलीवरी सेगमेंट इतनी तेजी से दौड़ रहा है जो आज के 30 लाख व्हीकल का रिक्वायरमेंट है, आने वाले 6 साल में वो 3 करोड़ होने वाला है। इस डिमांड को देखते हुए हमारे सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने चाहते हैं कि आने वाले सालों में 1 लाख गाड़ी हमारे प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय करके हम एक 1200 करोड़ की कंपनी बनाए। इस जर्नी को हम तेजी बढ़ाने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं 10 करोड़ रुपीस फॉर 3% ऑफ इक्विटी। टाइकून्स, हम एक ईवी रेंटल कंपनी नहीं है। वी आर क्रिएटिंग अ लाइवलीहुड। हम एक सस्टेनेबल, स्केलेबल, रिलायबल ईवीज हमारे ड्राइवर्स को देके उसको एक इज्जत से रोजगार दिला रहे हैं। तो आपका जो बिजनेस मॉडल है, थोड़ा सिंपल वे में अगर समझना हो तो ये जो बाइक्स है, स्कूटर्स है, इनको आप खुद बेचते हो ड्राइवर्स को कि आप एसेट हैवी हो कि आप ये खुद रेंट करते हो? मॉडल कैसे चलता है? हम पहले एसेट्स ओन करते थे पर अभी एसेट लाइट है। हम एसेट्स लीज पे लेते हैं और उन लीज्ड व्हीकल्स को हम सब लीज करते हैं। कितना मार्जिन मिलता है उसमें? 44% ऑफ द कॉस्ट गोज टुवर्ड्स द व्हीकल एंड द बैटरी एंड 56% ऑफ ग्रॉस मार्जिन स्टेज विद अस। तो ये व्हीकल्स आप कहाँ से सोर्स करते हो? आज के दिन वी आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बट वी हैव आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पाइपलाइन। बाय अप्रैल इट शुड गो लाइव। ओके, तो ये आपके खुद के ब्रांड के these are designed by us, all the certifications on us। बट यार आप कहते हो आपने डिजाइन करा है बट एक्चुअली तो मोस्ट कंपोनेंट्स इसके चाइना से ही आते होंगे। सो सप्लाई चेन चाइना से सर। हिंदुस्तान में कोई बनाता नहीं है? कोई नहीं बनाता। ये हिंदुस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है और मेरा तो बड़ा नेगेटिव बायस है इंडस्ट्री को लेके कि सारे ईवी अंदर से तो सेम है। मोस्टली चाइना का ही टेक है अंदर, इन सब के बाहर से इन्होंने प्लास्टिक लगा रखा है। नहीं, पूछताछ करिएगा, 5 ब्रांड हिंदुस्तान में बनाते हैं। जिनको आप ये सब्सक्रिप्शन पे देते हो मोस्टली गिग वर्कर होंगे, राइट? जो ब्लिंकिट, स्विगी पे डिलीवरी करते हैं इन बाइक्स को यूज करके, वो डे टू डे कमाते हैं। और उनका मन करता है तो 15 दिन गाँव चले जाते हैं। तो आपको कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा अभी तक? इंडस्ट्री का चर्न रेट is 72%. We collect our onboarding fees. With that, we have reduced down this churn rate from 72% to 46%. तो आधे ड्राइवर फिर भी छोड़ जाते हैं। छोड़ रहा है। क्या कॉस्ट है एक स्कूटर का? This comes at 35,000 rupees and the other one comes at 65,000 rupees. बट ये 35,000 का स्कूटर का क्वालिटी कैसा है? कम कॉस्ट में आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? अभी हम जो ये प्राइसिंग बता रहे हैं ये सिर्फ गाड़ी का है। बैटरी का ओनरशिप हम नहीं लेते हैं। बैटरी का ओनरशिप के लिए हमारे पास पार्टनर्स हैं जो एस्टैब्लिश्ड R&D करके डिप्लॉय कर चुके हैं। वो लोग उनके इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं और उनके साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। मैं बताता हूँ इसमें एक्चुअल मेन प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी सारी सेम है, तो मोस्टली सेफ्टी वाइज सारे सेम है। ये महंगी इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो गिग वर्कर एक्चुअली पैसे दे रहा है इस बाइक के और बैटरी के। दिन में करेगा लेट्स से 200 रुपए का और डिलीवरी, तो 100 रुपए इनको देगा, 100 रुपए घर लेके जाएगा। प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि हमें नहीं पता, हमें तो बारिश हो रही है बाहर, फ्लड हो रहा है, हम तो मंगाते हैं 10 मिनट में आ जाता है। 13 मिनट भी होते हैं तो हम उसको गाली निकालना शुरू करते हैं। उनको कम से कम 8-8, 12-12 घंटे डिलीवरी करते हैं तब जाके इसकी EMI वो भर पाते हैं। बहुत हार्श रियलिटी है गिग वर्कर्स की एक्चुअली। तो दैट इज द इशू। बाइक सारी सेम है, प्रोडक्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, चाहे आप कर रहे हो चाहे कोई और कर रहा हो ना। ये पूरा खेल है एग्जीक्यूशन का। आप में ऐसा क्या खासियत है कि यू आर एबल टू एग्जीक्यूट दिस बेटर? जस्ट लाइक सर सेड, अभी चर्न रेट तो ज्यादा है तो उसको मॉनिटर करते जाते हैं हम कि कितने घंटे ड्राइवर इज ऑन द रोड। जैसे 18 आवर्स 19 आवर्स इज लाइक द टिपिकल माइंडसेट एवरीवन हैज, बट हमारे इसमें इफ समवन डज 30 ऑर्डर्स भी करे तो दे आर एबल टू मेक देयर एवरी डे इन डे आउट। उसको वो डिसिप्लिन भी हम सिखाते हैं कि कौन से टाइम पे कहाँ पे जाना है, एवरीथिंग थ्रू द एप्लीकेशन, क्योंकि एक पैटर्न रहता है।
सुबह के टाइम पे क्या चलता है, आफ्टरनून के टाइम पे क्या चलता है, शाम के टाइम पे क्या चलता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि एक ड्राइवर को रोड के ऊपर उतना स्ट्रेस ना ले पाए। एक आपका व्यू पॉइंट समझना चाह रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इनके साथ? पहले तो पेट्रोल की गाड़ी चला रहा था। हाँ। जब ये हाला का जो ईवी गाड़ी ले गया उसके बाद में तो बहुत अच्छा हो गया। अब इसमें क्या है, मेन पॉइंट बोलते, अब जेब में पैसे भी नहीं है तो गाड़ी ले लेके जा सकते अपन। पेट्रोल कार है तो बहुत परेशानी हो रही थी, इसमें आने से बहुत अच्छा हो गया मेरे को। अच्छा, मैं आज एक बाइक लेता हूँ आपसे, एसेट हैवी बोलता हूँ यार, इस पे कितना IRR दोगे, तो कितना दोगे मुझे IRR? 25%। 25%। 25% मोनू उनके जेब से आ रहा है, आपको पता है 25% कमा रहे हैं आपसे। उनके जेब से नहीं आ रहा ना सर। अगर वो मेरे प्लेटफॉर्म में नहीं होता, अगर वो पेट्रोल की गाड़ी चला रहा है, उसका नेट इनकम तो कम हो रहा है ना सर। हाँ, It's not whether I make money or not. It is his net is increasing. All of you have to make money, Yes. so I think it's fair. You've reached 95 crores revenue, Yes. so you are doing something right. हाला को पहले से ही प्लेटफॉर्म फर्स्ट बनाया। वो जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है हमने बनाया। मतलब ये बाइक में आप किसी भी बैटरी स्वैपिंग वेंडर को आप ऐड कर दो, स्टेटस ऑफ द बैटरी उनको भी जाएगा, हमें भी आएगा। इंश्योरेंस, फाइनेंस, आपका व्हीकल का स्पेयर पार्ट्स कौन सा है, कौन से हब में है, एवरीथिंग इज डिजिटल फर्स्ट। आप हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी देखोगे, लास्ट ईयर हमारे पास 3000 व्हीकल थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम 22 करोड़ रेवेन्यू कर रहे थे। पिछले साल के फंड रेज के बाद हम हाइपर स्केल में गए बिकॉज हमको हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इस साल हम तकरीबन 6000 व्हीकल एक्स्ट्रा ऐड कर पाए प्लेटफॉर्म पे विदाउट रिड्यूसिंग हमारा मार्जिन्स। ये अगर हम बस एक रेंटल कंपनी की तरह चलाएंगे ये कभी भी नहीं हो पाएगा। So what motivated you to get into such a competitive, very operationally heavy business? तो मेरा जब PhD चल रहा था, हाला एक एक्चुअली रिसर्च थीसिस था। हाँ। मैंने हाला को लेके एक मोबिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान था। मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का शिफ्ट देख रहा था 2017 एंड इंडिया एक सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल में चला रहा था कि बसेस चल रहा है, कार्स चल रहा है, ऑटोस चल रहा है, पर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम कहीं नहीं है। ओपन डेटा हमारे पास है ही नहीं। इन सब सिस्टम्स को जुड़ के एक कस्टमर जर्नी को कैसे आसान करें, दैट वाज माय थिंग। एंड इसको लेके मैं ऑलरेडी मैड्रिड में एक प्लेटफॉर्म बना चुका हूँ एज अ चीफ डेटा आर्किटेक्ट। तो मैंने सोच रहा था कि ये एस्टैब्लिश सिस्टम्स में जब मैं कर पा रहा हूँ, व्हाई कांट आई सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम इन इंडिया? And I wanted to do a mobility intelligence platform, only a software which can only give you. I was just going to tell you, your scooter is not a scooter; it's an intelligent scooter. Yes. Because आपका पूरा tracking है, आपका पूरा analytics है. You can actually sell your traffic data to actually autonomous driving companies जो बहुत actually पैसे दे रहे हैं data के लिए. Rightly mentioned, there is an opportunity for us to monetize the data point of view also. But then again, at this scale, we wanted to concentrate on the core things. Yes. What is the revenue breakdown? That 95 crores का थोड़ा breakdown बताइए. 70% of the revenue today comes from the third-party logistics segment, जहाँ पे हम quick commerce, e-commerce के साथ जुड़ के हम deliveries करते हैं. So who is your biggest customer in that 72 crores? First one is Zomato, second one is Big Basket, third one is Blinkit, and the fourth one is Porter. And how are the margins there in that space? हमारे margins at the end of the day, bottom line comes to per vehicle कितने कमा रहे हो, which is almost 7,800 rupees. पर जब ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से काम करते हैं, क्योंकि हम ये ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ पीपल भी करते हैं, इसके लिए हमको एक मैनेजमेंट फी मिलता है, वो जो 10% से 15% तक चलता है। And geographic focus क्या है आपका? We predominantly concentrated in South Indian market because I'm a core believer that mobility is a local game. You need to be understanding the regulatory, people, demography, everything, right? So we concentrated more on these regions and then now we expanded into the northern markets also. आपने पैसा उठाया, कैप टेबल कैसी है आपकी अभी? आज तक हमने HNI, अल्ट्रा HNI से पैसे उठाए हैं। हमारे इक्विटी को मिला के 12.5 crores ऑफ इक्विटी हमने रेज किया है। लास्ट राउंड आपने क्या वैल्यूएशन पे रेज किया? 120 crores in last year, November 2024. How much did you raise in that? 4.5 crores. Okay. मार्केट का क्या कहना है? मार्केट आप स्कोर देंगे प्लीज? Idea 4, product demand 4, market value 4, team 5. इसमें टीम से चालू करेंगे 5। आई थिंक आपका डेप्थ, क्लैरिटी, नंबर का पकड़ बहुत अच्छा है, नो डाउट। आपका 2 मेन यूएसपी जो समझ आया जिसकी वजह से सब मिला है आप दोनों के अलावा इज आपका कॉस्ट। इसमें आपका मार्जिन प्रोफाइल एक बार आप थोड़ा समझाएंगे क्या? 100 rupees अगर हम बना रहे हैं, 70% goes to the drivers
13% goes towards the vehicles and the batteries. 1.5% goes towards the crew. 1% goes towards the maintenance. 1% goes towards the insurance. 1% goes towards the IoT. 2% goes towards the infrastructure. We are left with 10.5% to 11%. उधर से हम हमारा SG&A expenses and all the interest cost and everything 4.5% जाता है और बचा है 5.5 to 6%. वो हमारा net profit in hand है. तो आप प्रॉफिटेबल हो अब? Yes. तो चलिए, कैन वी जंप टू द ऑफर स्ट्रेट? चलिए. एज अ फाउंडर टू फाउंडर मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास ला सकता हूँ और मैं मेरी कंपनी को पब्लिक लेके गया हूँ, ये कंपनी पब्लिक जा सकती है तो वो भी एक बहुत वैल्यू ऐड ला सकता हूँ. तो मेरा ऑफर है 2 crore रुपीज़ फॉर अ 1.25% स्टेक. एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पे आपके कस्टमर गिग वर्कर ही हैं और 50% लोग अभी भी चर्न कर रहे हैं, मतलब कि वो ना खुश हैं. अगर आप इस 50% को 25 ले आओ तो मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि हाँ यार, अब 75% लोग तो खुश हैं आपके प्रोडक्ट से. तो ये चर्न रेट मेरे को बहुत तंग करता है और इनकी द होल मॉडल मेरे को बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ और उनको ढंग से ट्रीट नहीं करा जा रहा. फॉर दीज रीजंस मेरे तरफ से पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी और मेरे तरफ से नो ऑफर. ये ग्रोइंग मार्केट है बट ऑल्सो कि ना बहुत ही क्राउडेड मार्केट है. तो डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर एज अ फैमिली ऑफिस इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर समवन टू फंड योर फ्लीट वी कैन टॉक फॉर दैट. यस. आरती मैम, कंडीशनल ऑफर है आपका या फ्रॉम अ लीजिंग पर्सपेक्टिव खाली? सभी ने बता दिया कि क्राउडेड है लेकिन बड़ा है. जो बड़ा है वो क्राउडेड रहेगा ही. यस. A standing bike is a liability and a running bike is an asset. तो how many kilometers रोज ये दौड़ता है, उसमें ही सबका भलाई है. ये कैसा इंप्रूव होगा, उसके लिए क्या क्या करेंगे, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन दैट्स द की फैक्टर. आपने बोला 25% रिटर्न मिलेगा, तो उस एस्पेक्ट को डिस्कस कर सकता है. इक्विटी में मैं नहीं हूँ. द कंडीशनल ऑफर फ्रॉम अ लीज पर्सपेक्टिव अगेन. मुझे लग रहा है कि ना द रिटर्न्स एंड द लार्जर प्ले विल कम फ्रॉम डेटा. दैट नेक्स्ट 5 years यदि आप सही से फोकस करके डेटा कलेक्शन करो, यू विल बिकम अ डेटा कंपनी. बिकॉज आई बिलीव इन दैट, आई वांट टू इन्वेस्ट 50 lakhs at 150 CR valuation. I cannot go beyond that. Thank you. Now market. अभी कितना कैश है हमारे पास? 8.2 crores है अकाउंट में. हम इक्विटी डेट दोनों करना चाहते हैं. इक्विटी में 75 लाख 150 करोड़ पे साथ आएंगे, बट डेट साइड पे हम आपके 3 चीज़ें करना चाहते हैं. बिकॉज अभी आपका कैश है, आप प्रॉफिटेबल हो, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन पे पैसा नहीं लेना चाहिए. बाकी आपकी मर्जी है. तो मैं आपको रिकॉर्ड से 10 करोड़ डेट दूंगा, 3 करोड़ आपकी बुक्स पे, तो 16% पे और 10% वारंट 18 महीने के लिए, एंड 7 करोड़ आपके लिए एसेट लीजिंग रहेगा. बिटवीन 18 to 20% आएगा. सो यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी देयर, जिससे आपका इक्विटी मार्जिन बढ़ जाएगा. मेरे एक्सपीरियंस में कि मार्केट जनरली काफ़ी खतरनाक रहते हैं. लोगों को स्लिपरी स्लोप पे डालता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाता है. फाउंडर टू फाउंडर एक्सपीरियंस. जब आप मार्केट में जाओ तो थोड़ा सावधान रहो. फाउंडर्स से हाथ मिलाओ. At the end of the day, I can continue to do asset leasing at like 16%, 18%, but why are we here is primarily to bridge a round before we go to a much larger round where the discussion is something else entirely, right? Where we are talking a 2x multiple on revenue. We have an order pipeline already of 3,000 vehicles. We didn't even include that in our revenue. See, हमारा confidence ये है कि अगर आप आना चाहते हैं, like we'd expect a quantum to be significantly higher, क्योंकि उससे क्या होता है, our margins can be improved because I can start working at lower and lower debt rates. Again, founder to founder, whatever decision you take, we are good with that. Yeah. I think you have to succeed. This is not my venture. मना भी कर सकते हो. सोच लो बार बार. My 2 cents here on the valuation part. Sir has mentioned, you know, even then when we look at the industry benchmark, हम very conservative पूछे हैं जो 3x तक है. बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आप लोग अगर अपना भी ऑफर इम्प्रूव करना चाहते हो तो एनी टाइम आप इम्प्रूव कर सकते हो.
I think the best I can go is 2 crores for 1%. नीतीश सर एटलीस्ट 2 गुना रेवेन्यू कर दीजिए. आई वांट टू वर्क क्लोजली विथ यू. 2 गुना तो कितना हो जाए? 2.5 for 1%. And I would request if market also can join at the similar price. डेट ऑफर हम फिर भी रखेंगे, बट इक्विटी वैल्यूएशन पुराने के अलावा. आप एक काम करो, मेरा 50 lakhs ड्रॉप कर दो, मार्केट का 75 ड्रॉप कर दो. आप खाली उनसे ले लो तो आपका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा डाइल्यूशन. We want the brains here. We will be there irrespective whether we put money. Sir, if you don't mind, can we have a Discussion. Yeah, conversation? sure. Yes, we are worth it. This is the Hyderabad talking. The brains. ओके. क्या है भाई फाइनल ऑफर फिर? इनको अपना वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उनको लगता है कि रियली मिनिमम वैल्यूएशन होना चाहिए. पर कोई भी इन्वेस्टर पे जितना वैल्यूएशन हायर जाता है उतना रिस्क भी बढ़ता है, राइट? बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बोलते हैं वो कम हो जाती है. मुझे ये रियली अच्छे लगे इनके साथ काम करने के लिए. हमने एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आए कि वैल्यूएशन में 250 करोड़ दूंगा, पर 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा. अभी इनके साथ काम करूंगा और हमारी कोशिश रहेगी कि ये कंपनी सीधे IPO पे जाएगी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपनी वैल्यूएशन पे रहे. आज एक फाउंडर्स पे उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो हम भी 25 लाख यही वैल्यूएशन पे आएंगे एंड वील आल्सो इन्वेस्ट इनटू इट बिकॉज वी रियली लाइक व्हाट यू आर बिल्डिंग टुडे. थैंक यू. ऐसा तो मैं बोला, मैडम क्या बोलते हैं वो मैं ही बोलूँगा. मेरा भी वही है. थैंक यू. 25 lakhs and 0.1% of Aarti's I am also doing. आदित्य को मैं ये बोल रहा था कि X1 का इतना टेंशन मत हो जाओ, हो सकता है X2 will justify. चलो भाई, वेलुमनी सर को कौन मना कर सकता है? हम सब X2 का ही वेट कर रहे हैं. मार्केट का फाइनल ऑफर है 10 crores डेट एंड 50 lakhs इक्विटी एट 250 crore सेम वैल्यूएशन. Shanti ma'am, तो आपका ऑफर नहीं है, नो ऑफर, राइट? Yeah, that is the Shanti only ma'am, regret. there's no offer, but any kind of help, she's there and at the right time. I am very, very tech person, so I would love to work with you on the data part. So, Thank you. Aarti ma'am, 25 lakhs, 0.1%. Nitish, 1 crore, 0.4%. Dr. Velumani, 25 lakhs, 0.1%. Aditya, 25 lakhs, 0.1%. Shanti ma'am, no offer. Market debt, 10 crores. Equity, 50 lakhs, 0.2%. Congratulations, guys. Welcome to Bharat Ka Future. Thank you everybody. Bye. Thank you guys. Welcome back. Yes. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई है और इसी के साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आपका अकाउंट अब होता है एक्टिवेट और यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट और seamless banking. So we've also got an offer from Market by Record Club, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations. Thank you so much. आज भारत के सुपर फाउंडर्स में हुई है 21.96 करोड़ की फंडिंग. मिशन 100 करोड़ में क्या अगले सुपर फाउंडर्स को मिलेगी इन्वेस्टर्स की ऑफर? आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, co-powered by Stock Grow, Legacy Collective and Jana Small Finance Bank. Productivity partner OnePlus Pad 3, pet food partner Bowler's Dog Food. मैं हूं सतीश क्षीरसागर, फाउंडर ऑफ अल्टीमेट पेरेंटिंग. टाइकून्स, पेरेंटिंग अब ट्रांजैक्शनल बन चुकी है. क्वालिटी कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा है, बॉन्डिंग की बातें ही नहीं हो रही है. तो इसी चक्कर में हम ये बोल रहे हैं कि प्यार तो है लेकिन वक्त नहीं है जताने के लिए. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास और उसका नाम है अल्टीमेट पेरेंटिंग. पेरेंटिंग ऐसा एक चीज है,
कोई सही नहीं है। हमारा ऐप अलग अलग फीचर्स दे रहा है जो पेरेंटिंग के अलग अलग डायमेंशंस को इवॉल्व कर रहा है। ये कंटेंट आपकी है या किसी रिसर्च की है? कंटेंट हमने साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को लेके करी हुई है। ये आपका आईपी है? ये हमारा आईपी। आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीछे जा रहे हैं, आई थिंक वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत जेन्युइन है। आपने कंटेंट भी बनाया होगा जो अच्छा है। एक ऐप बनाने से अडॉप्शन नहीं होती, एक नोटिफिकेशन भेजने से अडॉप्शन नहीं होती। हमें अगर मास लेवल पे पेरेंट्स पहुंचना है तो ऐप इज द बेस्ट मीडियम फॉर दैट। मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। आप ऐसा कुछ यूज केस बनाइए कि एडॉप्शन इंप्रूव हो। 3 महीने का मुझे डेटा दिखाइए, तब देखें। आपकी टीम को एक्विहायर करना चाहेंगे, इंक्लूडिंग हिम, इंक्लूडिंग बोथ द फाउंडर्स। टेक ओवर, एक्विजिशन। वैसे तो मुझे भी लोग चाहिए जो मेरी भी स्टार्टअप्स के लिए काम कर सके। मैं तो उनको एटलीस्ट उनका फ्यूचर सिक्योर, तो उनका सपना तोड़ रहा है। टाइकून्स ने फाउंडर्स से पूछे टफ सवाल। जो केमिकल फॉर्मूला आप लगाते हो वो 20 और लोग लगा सकते हैं, तो बैरियर टू एंट्री तो है नहीं इस प्रोडक्ट में। लेकिन आपने बायबैक गारंटी दी हुई है ओरिजिनल प्राइस पे, तो आपके तो सारे नंबर ही हिले हुए होंगे। आपका डिफरेंशिएटर क्या रहेगा? बिकॉज ये ऑलमोस्ट कमोडिटाइज प्रोडक्ट हो जाएगा। मुझे एक मशीन दिख रही है, सोलर के पैनल्स दिख रहे हैं, मुझे डिफेंसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो मुझे नहीं समझ आ रही। व्हाट एम आई मिसिंग? क्लैरिटी नहीं आ रही बिजनेस पे। आप ये डिसाइड करो कि आपको कितना टाइम फंड रेजिंग में वेस्ट करना है। आप ये भी देखो कि जो इन्वेस्टर आज आपको 50% कम पे वैल्यू कर रहा है वो आपको हमेशा ही ऐसा करेगा। आप अपना सोचिए ना, हमें अपना सोचने दीजिए।